गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं कंसेप्चुअल स्टडी में। हमने जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है इलेक्ट्रो डिवाइसेस एंड सर्क्यूट्स। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैज मेल्ड टू मी दैट मीन्स सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विद इंग्लिश, सो प्लीज यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस। फर्स्ट एक्सप्लेन इन हिंदी and after that summarize it into English. Okay, so let's start in first video. Actually I have just uploaded first video, so this is the second video. In first video we have discussed about the temperature, about the thermal voltage and Boltzmann constant and kinetic energy, potential energy, and electron volt is the unit of energy. All these topics have been discussed in previous video. So first see that video, after that you can see it. Okay, so 7th topic is energy gap, that is Eg or Eg. Okay, so let's suppose this is your band diagram, this is valence band, this is conduction band. The edge of conduction band is called EC and edge of valence band, that means upper edge, EB. Okay, so the difference between EC and EG, दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम EG बोलते हैं, एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? दैट मीन्स EG क्या हो जाएगा तुम्हारा? EG इक्वल टू EC माइनस EB, दिस इज द एनर्जी गैप। ओके, one more equation we have to write. Eg at any given temperature equal to Eg naught minus beta naught into T. Okay, so Eg naught, Egt at the given temperature and Eg naught at 0 Kelvin at temperature T, and this is temperature, it is in Kelvin. Okay, so this is in electron volt, this is in also electron volt, that means here Kelvin. So electron volt cannot be added in Kelvin, so unit of this will be electron volt per Kelvin, that means Kelvin cancel, so electron volt here, electron volt here, electron volt here, that means electron volt can be add or subtract. Okay, that means same energy can same unit can be add or subtract. Okay, so this is now for germanium, this beta is constant. Okay, constant, and for germanium value 2.23 into 10 to the power minus 4 electron volt per Kelvin. You have to learn this value. And 3.4 for germanium into 10 to the power minus 4 electron volt per Kelvin. Okay, this value you have to by heart. That means if you have this value, that means at 0 Kelvin you know energy of any semiconductor. That means you can find energy gap at given temperature, whether it can be room temperature, it can be ambient, it can be absolute temperature, or it can be any temperature. That means you can find energy gap at given temperature. Okay, write down this. Now this equation says that here minus is given. It means if temperature will be increased, that means Egt will be decreased. That means temperature will be increased, Eg or energy gap at given temperature will be decreased. So you can say that Eg inversely proportional to 1 upon T. That means temperature will be increased, Eg will be decreased, because it is linear equation. So Eg and T both have linear dependency. Okay, and now you have to learn all these two values. This is gap, germanium, silicon, 0 Kelvin, 300 Kelvin. Okay, this is Eg in electron volt. What is the value? 0.785 electron volt
0.72 electron volt, this is 1.21 electron volt, or this is 1.1 electron. This is the standard value you have to learn. You can see here at 0 Kelvin it is low temperature, at 300 Kelvin it is high temperature. That means temperature is being increased, that means energy gap is being decreased. So you can see here Eg and T have inversely proportional to, that means temperature increase, energy gap will be decreased. You can see here in table. Okay, write down. Now next topic is electric field. So you can say electric field or electric field intensity, field gradient, or you can say field. All these relate to same electric field. Okay, that means electric field intensity. If you have asked in the question, that means you have to find E. Okay, or simply field or field gradient you have to find. These all the, ये किसी कुछ भी पूछा जा सकता है तुमसे, ये field gradient, that means you have to find E. It denotes like that. Okay, it can denote like this, don't worry. कुछ भी दिया गया है, अब आपको ई फील्ड ही निकालना है, चाहे फील्ड ग्रेडियंट पूछा है, फील्ड पूछा है, कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या होता है बाय डेफिनेशन से, अगर अपने 12th में जरा भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ा है, EMFT बोल देते हैं, EMT बोलते हैं उसको, तो उसमें एक इक्वेशन दी जाती है, दैट मीन्स माइनस डेल बी, दैट मीन्स ये डेल ऑपरेटर जो होता है वो 3D में होता है, तो इसको हम 1D में लिखेंगे, 1 डायमेंशनल में, तो क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू माइनस dV बाई dx. ओके, दिस इज इक्वेशन. नाउ अगर इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ई को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज, दैट मीन्स अप्लाइड वोल्टेज अपॉन स्पेसिंग और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस. ओके, राइट नाउ एक्चुअली दीज आर द बेसिक टॉपिक. सो अभी आपको बोर लग रहा होगा थोड़ा सा, बट जैसे जैसे ये कवर हो जाएंगे उसके बाद बहुत ही मजा आने वाला है सब्जेक्ट में. एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसी भी सेमीकंडक्टर में है, किसी भी कंडक्टर है, कुछ भी है, वो डायरेक्टेड कैसे होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ये आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. पॉजिटिव चार्ज से जाके ई लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो पॉजिटिव चार्ज से जाके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है. तो सपोज हमारा ये कोई सेमीकंडक्टर बार है, सेमीकंडक्टर को हम आज के बाद SC से लिखेंगे. ओके, सो यहाँ हमने अप्लाई किया है पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, सेमीकंडक्टर बार है. अब होगा क्या, इधर प्लस है, इधर माइनस है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगा, ये फील्ड. ओके, अब नाउ इसमें सम इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें. तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, अट्रैक्ट होंगे इधर की साइड. तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होगी और होल की डायरेक्शन इधर होगी ना. H को हम होल से डिनोट कर दें. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी. तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो IN इधर फ्लो करेगी, और होल जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं होल की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करती है. एक्चुअल में तो होल फ्लो करते ही नहीं है, ठीक है. ये हम आपको ये टोटल करंट है, सपोज आई, होल फ्लो नहीं करते हैं. ये आगे जैसे जैसे टॉपिक कवर होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि होल होता क्या है एक्चुअली. इट्स अ वैकेंसी बैंड इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड नथिंग बट. सो अभी आप ये मान लो कि होल मूव कर रहे हैं, दैट मींस टोटल करंट क्या हो जाएगी हमारा, जब हमारे बहुत चार्ज कैरियर अवेलेबल है हमारे किसी सेमीकंडक्टर में, तो करंट क्या हो जाएगी, टोटल IN प्लस IP. राइट डाउन. Now ninth definition is current. So what is the current? All of you know, I equal to dq by dt. dq by dt, that means if, what is the meaning of that? That means rate
of flow of charge. Okay, so in semiconductor two types current. First one, drift current. Second one, diffusion current. What is the meaning of that? क्या है इसका मतलब? ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट का मीनिंग ही होता है हमारा फोर्स, कि हमने फोर्स अप्लाई किया तो करंट क्या होगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू क्यू ई, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। दैट मीन्स फोर्स है तो ई होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो, नॉट क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनिक मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ई फील्ड हमारा है तो कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहे हैं उसमें, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। डिफ्यूजन करंट, जहां ई अप्लाई यहाँ पे है, यहाँ पे ई अप्लाई हमारा नहीं है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि हमारा एक सेमीकंडक्टर वायर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक दैट मींस प्योर, इसमें कोई डोपिंग नहीं की गई है। उसके बाद हम इसको डोपिंग करते हैं, इसमें डोपिंग करते हैं तो यहाँ पे सपोज हाई डोपिंग है, यहाँ पे बहुत कम डोपिंग है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होगा, कैरियर्स का डिफ्यूजन होगा, तो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगी। जाहिर सी बात है, होल का भी होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन का होगा तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। दैट मींस कोई ना कोई करंट होगी। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है वहां डिफ्यूजन की वजह से जो करंट आती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स नहीं लगाया गया तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ओके, राइट डाउन दिस डाउन। और नोट्स अपने आप को खुद से तैयार करना है, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताते जा रहे हैं, आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम सेव हो रहा है इससे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? 10th टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। इट इज द these all definition is basic definitions, so you will have better understanding about the whole subject. So first talk about the mobility. What is the mobility? So mobility is nothing but mobility equal denote with mu. It can be electron mobility, that means it denote with mu e or mu n. Whole mobility mu p or mu h. So simple mobility we can denote mu. So it is the drift velocity डिवाइड बाई फील्ड इंटेंसिटी। मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि फील्ड लिखो, फील्ड इंटेंसिटी लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखो, फील्ड ग्रेडियंट लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v। इट इज नॉट वोल्टेज, वोल्टेज का हम ऐसे बनाएंगे हमेशा, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, स्मॉल v, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं vd अपॉन, ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, vd इक्वल टू म्यू ई। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ओके। ये तुम्हारा, हाँ, यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट, तो मोबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। क्योंकि देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर, सॉरी, मीटर पर, सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है ना, इसको मीटर लिखो, एक मिनट तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मीटर पर सेकंड, इसका वोल्ट पर मीटर, मीटर ऊपर जाएगा दैट मींस मीटर स्क्वायर, और वोल्ट नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। सेंटीमीटर में बात करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ओके, राइट डाउन। ना मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये जो मोबिलिटी वर्ड लिखते हैं हम, मोबिलिटी बार बार पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इस मोबिलिटी का कुछ तो मीनिंग होगा ना इसका। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग होता है कि हाउ फास्ट चार्ज कैरियर्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट मींस कितनी तेजी से चार्ज कैरियर है हमारा मूव कर सकते हैं, वो डिनोट करता है मोबिलिटी। जिसकी जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी वो कैरियर उतनी जल्दी मूव कर सकता है, इसका ये मीनिंग होता है। अब हम वही बात करते हैं जैसे हमने किस में बात करी थी,
एनर्जी गैप जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में। तो मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हमने अभी बताया म्यू ई और म्यू एन, और होल मोबिलिटी म्यू पी और म्यू एच। दैट मीन्स यहां से वैल्यू लिखेंगे तो जर्मेनियम इधर इधर सिलिकॉन, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में दी गई तो अच्छी बात है, नहीं दी गई है तो आपको याद होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसकी कितनी होती है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। याद रखना, ये मीटर नहीं मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज सेंटीमीटर यूनिट ही जनरली दी जाएंगी तो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड सर्किट सब्जेक्ट में, इसलिए कहीं कहीं भी दे देगा मीटर स्क्वायर, पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे ये हो गया 1800 पर वोल्ट सेकंड। ये कितना सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, इसके लिए 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। यहां देख सकते हो तुम कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है होल के कंपैरिजन में। तो इसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर पा रहे हैं होल से, मानते हो? जब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या है, मूव करने की कैपेसिटी है ना उनकी, कि किस तरीके से कितनी फास्ट कोई कैरियर मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन तेजी से, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा आई एन, ओके, और होल की वजह से जो करंट होगा आई पी। इसमें से कौन सा ज्यादा होगा? जो तेजी से मूव कर रहा है वही करंट ज्यादा होगा ना, दैट मींस आई एन करंट ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन आई पी। ओके, यहां से हम एक और कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर रहा है, दैट मींस सिग्मा एन ग्रेटर देन सिग्मा पी। You have to learn. In interview, this question can be asked. Okay? Write down. Now, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एनर्जी गैप डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। ओके, सेम केस यहाँ हमारा मोबिलिटी के साथ भी होता है। मोबिलिटी के साथ होता है कि मोबिलिटी इंक्रीज इफ टेम्परेचर डिक्रीज, और ऐसे कह सकते हैं इसको मोबिलिटी डिक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीज। हाउ? बट वहां पे लीनियरली हमने बोला था, यहाँ पे लीनियरली नहीं होगा। यहाँ पे ये रेशो होता है टी टू द पावर माइनस एम, ठीक है। एम क्या है अभी हम बताते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक सेमीकंडक्टर बार को रखा गया है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या होगा? एटम्स होंगे, वाइब्रेट करेंगे, कॉलिजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से मूव करने की एबिलिटी जो है उनकी कम हो जाएगी ना। इस वजह से हम बोलते हैं कि टेम्परेचर यहाँ अगर इंक्रीज करेंगे तो एटम वाइब्रेट होंगे, तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी? डिक्रीज हो जाएगी। ये रीजन होता है इसकी, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली हैं, कोई भी मतलब खुद से नहीं है, ठीक है। तो जो भी कहा गया है आपको वो एज इट इज आपको याद करना है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो म्यू प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस एम। जरा ये एम क्या है हमारा? यहाँ पे एम कांस्टेंट है, एम एक कांस्टेंट है, ये लिख लो जरा। एम की वैल्यू क्या है? 1.664 इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड 2.334 होल। ये तुम्हारा जर्मेनियम के केस में है, ओके। जर्मेनियम के अगर इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे एम की वैल्यू 1.66 रखना है, और होल है तो 2.33। एम तुम्हारा सिलिकॉन के केस में कितना हो जाएगा? 2.5 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन 2.74 होल। ये तुम्हारा हो जाएगा सिलिकॉन के केस में। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको एक बार राइट डाउन करो ना। सेमीकंडक्टर में जो मोबिलिटी होती है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द टेम्परेचर। मोबिलिटी मतलब इंक्रीज करने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी हम चाहते हैं कि इंक्रीज हो जाए, यही मीनिंग है ना। तो टेम्परेचर और डोपिंग दो चीजों पे ही डिपेंड करती है मोबिलिटी जो होती है, ठीक है। म्यू जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंड। तो फर्स्ट क्या होता है कि अगर हमने टेम्परेचर को रखा है
कांस्टेंट, ओके, एंड डोपिंग इंक्रीज कर रहे हैं। डोपिंग इंक्रीज, अभी आपने डोपिंग के बारे में नहीं पढ़ा है। डोपिंग का मतलब ये होता है कि कुछ इंप्योरिटी एटम उसमें हम ऐड करते हैं ताकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बिकॉज इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ना तो वो कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर होता है, बीच का होता है। तो हम ये चाहते हैं कि कंडक्टर में हाई कंडक्टिविटी होती है वो नहीं, कम कंडक्टिविटी हो, बट इंसुलेटर भी ना हो कि बिल्कुल ही कंडक्टिव ना हो वो, तो हम वो नहीं चाहते। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है दैट मींस प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसकी वजह से हम डोपिंग इसलिए ऐड करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, लेट्स सपोज रूम टेम्परेचर की बात करते हैं और डोपिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो डोपिंग इंक्रीज करने से क्या होगा, तो एक प्रैक्टिकली ग्राफ देखा गया है, इसको आपको याद करना है। डोपिंग और ये तुम्हारा मोबिलिटी, ये इस टाइप का कुछ ग्राफ आता है। किस टाइप का, इस टाइप का। ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है, और ये तुम्हारी होल की मोबिलिटी को डिनोट करता है। ये प्रैक्टिकली है, इसका कोई रीजन नहीं मैं दे सकता, ठीक है। बस ये मान लो तुम कि मोबिलिटी और डोपिंग के बीच में ये रिलेशन होता है कि अगर डोपिंग इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो तुम्हारा क्या होता है, मोबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है तो उसको अपर साइड में बनाया है, होल की कम होती है तो उसको लोअर साइड में बनाया। एक केस ये होता है, इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। सेकंड केस होता है डोपिंग कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, डोपिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, इस केस में क्या होता है, इस केस में थोड़ा सा यहां भी थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, लेट सपोज इस टेम्परेचर तक, जैसे जैसे शुरुआत है, सपोज टेम्परेचर धीरे से इंक्रीज किया तो एटम वाइब्रेट करेंगे, थोड़े से वाइब्रेट करेंगे, तो उसकी वजह से उनकी मूव करने की एबिलिटी बढ़ेगी। थोड़ा सा अगर टेम्परेचर ऐड किया तो उनकी जो बढ़ेगी, इस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा तो एटम वाइब्रेट करेंगे, एटम वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो मूव करने की जो एबिलिटी वो डिक्रीज होगी। बात समझ में आ रही। तो आगे से क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इस टाइप से ये ग्राफ आता है। दैट मींस यहां पे अगर हम बात करें तो मोबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2, एंड यहां पे अगर हम बात करें तो मोबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर -3/2। ये आपको दो ग्राफ याद रखने हैं। ये एडवांस लेवल का है, बीटेक फर्स्ट ईयर में तुम्हें इस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट ऐसे लेके चल रहा हूं ताकि जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको इसका फायदा हो, ठीक है। तो आपको जो हजम करने की बात है उसको आप हजम कर लेना, बाकी जो नहीं है तो उसको छोड़ देना। बाकी इलेक्ट्रो डिवाइसेस में ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकली है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें समझाने की। तो जब हमारा क्या होता है, डोपिंग कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो धीरे से टेम्परेचर बढ़ाया तो कम वाइब्रेट होंगे, उसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ेगी। बट जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट मींस कोलिजन होने लगेगा उस टाइम से, तो फिर क्या होगा, मोबिलिटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये दो ग्राफ है, आप इनको याद करो और ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। टेम्परेचर हम केल्विन में ही बात करेंगे, नहीं तो आप डिग्री सेल्सियस वगैरह में लेके चलो, क्योंकि सारे फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में ही रखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हमने मोबिलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। मोबिलिटी के बारे में हमने मोबिलिटी की जो वैल्यू थी वो पढ़ी जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए। मोबिलिटी नॉन लीनियर फॉर्म में डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, म्यू प्रोपोर्शनल टू द पावर -m, ठीक है। और मोबिलिटी का हमने टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी और तुम्हारा डोपिंग पर देखी। उसके बाद मोबिलिटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर देखेंगे क्या। तो ये रिलेशन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू ई पढ़ा था। ई फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड ग्रेडियंट कुछ भी बोल सकते हैं ई को, ठीक है। तो ये भी ग्राफ तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा इसको बताने की। ये मोबिलिटी, ये तुम्हारा ई फील्ड, ठीक है। तो होता क्या है इसमें फर्स्ट मोबिलिटी तुम्हारी कांस्टेंट रहती है, देन डिक्रीज लाइक दिस एंड देन डिक्रीज लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट होता है, ये तुम्हारा वोल्ट पर सेंटीमीटर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 10⁻³ ओके, वोल्ट पर सेंटीमीटर में 10⁻⁴ एंड दिस वैल्यू इज 10⁻⁷। दैट मीन्स इसको हम इस रीजन को बोलते हैं ई फील्ड। अगर इधर बात कर रहे हैं तो ये वेरी वेरी लेस है, स्मॉल फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स स्मॉल ई बोल सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं मीडियम फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं लार्जर फील्ड इंटेंसिटी। ये चीजें बोल सकते हैं। अब देखो होगा क्या, एक्चुअल में ई बहुत स्मॉल, जब हम स्मॉल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले में देखोगे तो क्या होता है, मोबिलिटी और तुम्हें किसकी, ई फील्ड की करनी है, बट ई फील्ड वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में जो मोबिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अभी थोड़ी देर बाद एक हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई फील्ड का ग्राफ बनाएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये समझ सकते हो कि जब हमारा फील्ड बहुत कम है तो क्या होगा, फोर्स कम है, फोर्स बहुत कम है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स और होल जो कैरियर है हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर, वो कोई फोर्स फील नहीं कर रहे हैं। उस टाइम में क्या होगा कि उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन्हें ऐसा फील ही नहीं होगा कि हमारे ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। दैट मीन्स उस टाइम जो मोबिलिटी होगी उनकी वो कांस्टेंट रहेगी। ये समझ में आ रही है बात? ये रख लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बहुत कम है तो उनको फील नहीं हो रहा है उस चीज का कि हमारे ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। दैट मीन्स उस टाइम मोबिलिटी कम है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो उनको थोड़ा सा फील होगा कि हमारे ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। दैट मीन्स ग्रेजुअली मोबिलिटी डिक्रीज होगी। ये रेशो होता है तुम्हारा म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/, ये बेटा प्रैक्टिकली है, ठीक है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो म्यू कांस्टेंट, ठीक है। आप मिलमैन बुक में भी देखोगे ना तो आपको ऐसे ही दिखेगा, उसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिकली है। उसके बाद क्या होता है, जैसे लार्जर फील्ड, तो लार्जर फील्ड में क्या होगा, जब इस मीडियम फील्ड में वो डिक्रीज हो रही है तो लार्जर फील्ड में और ज्यादा कोलिजन हो जाएगा उनका, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी। अगर इस केस की हम बात करें, तो ये यहां से अगर इस इक्वेशन से निकाला जाए तो कैसे, अगर ये कांस्टेंट होगा तभी तो म्यू ई इक्वल टू कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को अगर हम हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं, यही चीज निकल के आई। तो इस केस में जब लार्जर फील्ड लगाया गया है तो क्या है एक्चुअली, बीडी होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। दैट मींस सैचुरेट हो जाता है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, उससे ना ज्यादा इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, वो उससे ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। फिर वो जब हम 10⁻⁴ से ज्यादा का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो सैचुरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कैरियर्स होते हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो ये ऑर्डर में होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस ऑर्डर से अगर कोई हमसे बोलता है कि चार्ज कैरियर का वेलोसिटी 10⁸ है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि सैचुरेट हो गया उस टाइम पे, उससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकता, कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है वो। तो ये आपको ग्राफ याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली याद करने में ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, याद जरूर होगा आपको। क्यों होगा? क्योंकि आप जब 2 से 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। और दूसरी बात ये है कि
जो बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनको इस चीज की ज्यादा नीड नहीं है, ये गेट और ईएस लेवल की बात है, तो अगर उनके सिलेबस में ये नहीं पढ़ाया गया है या उनके एग्जाम में नहीं आ रहा है तो इसको स्किप कर सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन हमें ये सारी चीजें कवर करके चलना पड़ेगा, ठीक है, नोट करो इसको। अब हम ग्राफ देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई फील्ड के बीच में। एक्चुअली बस थोड़े से टॉपिक और बचे, इसके बाद आपको एकदम समझ में आएगा कि कैसे, ये भी समझ में आ रहा होगा वैसे, क्योंकि अगर हमने समझा है कहीं ना कहीं से तो जाहिर सी बात है आपको तो आना चाहिए, अब तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो V और E के बीच में ग्राफ देखेंगे तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। वोल्ट पर सेंटीमीटर, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे कहीं 10⁻³ था, यहाँ पे कहीं 10⁻⁴ था, यहाँ पे कहीं 10⁻⁷ था, ऐसा ही कुछ बताया था। इसको हम बोल रहे थे स्मॉल फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम बोल रहे थे मीडियम, इसको हम बोल रहे थे लार्जर फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, इस रीजन में मोबिलिटी क्या थी, Vd इक्वल टू यू नो म्यू ई। इस रीजन के अंदर, इस रीजन में मोबिलिटी कांस्टेंट थी, ई फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू ई। बिकॉज इस रीजन में पिछले ग्राफ में म्यू कांस्टेंट था ना, ऐसे ग्राफ आया था, ऐसे करके कुछ, ऐसे करके कुछ, फिर ऐसे आया था, फिर ऐसे गया था, ठीक है। तो कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट था तो म्यू कांस्टेंट हो गया, तो बीडी प्रोपोर्शनल टू ई हो गया। दैट मीन्स स्मॉल फील्ड इंटेंसिटी जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो ग्राफ हमारा लीनियरली है, डिपेंडेंसी ऑन ई बीडी की, ये लीनियर, ठीक है। जब यहां पे हमने अप्लाई किया, ये लार्जर है, ठीक है, तो यहां पे पिछले उसमें क्या देखा था आपने, पिछले उसमें क्या देखा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था कांस्टेंट हो गया था, सैचुरेट हो गया था लार्जर फील्ड में। मैंने बोला था ना, क्योंकि उनके बीच में कोलिजन, जब हम ई फील्ड बढ़ा रहे हैं तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, तो मोबिलिटी क्या होती थी, एकदम रैपिडली डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इधर देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहां से उस रीजन में मोबिलिटी ऐसे आ रहा था ना ग्राफ, इस रीजन में मोबिलिटी का ग्राफ ऐसे आ रहा था, दैट मींस डिक्रीज हो रही थी, तो मोबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, ई फील्ड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये लार्जर है ई। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, इसकी वजह से जो नेट इफेक्ट आएगा वो बीडी पे वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ग्राफ यहां कैसे आएगा, इस टाइप से, ठीक है। ये तुम्हारा 10⁻⁷ ऑर्डर में हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड, यही होता है। इस रीजन की बात करें, इस वाली रीजन की, तो यहां पे मोबिलिटी का जो ग्राफ था पहले ऐसे आया था, फिर ऐसे आया था, फिर ऐसे आया था, ठीक है। अब जब यह रैपिडली मोबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, तो मोबिलिटी के डिक्रीज होने, जिस टाइप से मोबिलिटी डिक्रीज हो रही थी और जिस टाइप से ई इंक्रीज हो रहा था, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। बट यहाँ पे इस रीजन में भी तो मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इस रीजन में हो रही थी मोबिलिटी म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/e, और यहां हो रही थी म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/√, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको पुट करोगे तुम इस टाइप से देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू कम है ना 1/σe से, 1/√, तो यहां ये कंप्लीट कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो होगा क्या, होगा क्या, ई फील्ड डोमिनेट कर जाएगा ना, डोमिनेट कर जाएगा, तो इफेक्ट को कैंसिल करके वो कांस्टेंट नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कांस्टेंट करने की कोशिश करेगा। तो कंप्लीट लीनियरली ना होके, ये ना होके कुछ ऐसा आता है ग्राफ, सब लीनियरली। तो यहां इस रीजन को हम बोलते हैं लीनियर, सब लीनियर, और ये कांस्टेंट और सैचुरेशन, ठीक है। राइट डाउन करो इसको। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, मोबिलिटी के बारे में देखा, एनर्जी गैप के बारे में देखा, मोबिलिटी की वैल्यू देखी, मोबिलिटी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी देखी। मोबिलिटी देखो, मोबिलिटी में बहुत ज्यादा पढ़ लिया है आपने,
तो मोबिलिटी में पढ़ा क्या क्या है ऐसे आप याद रखना तो ज्यादा याद हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखी हमने, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या देखा तुमने, म्यू प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस एम, एम की वैल्यू देखी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या देखा, एक बी डी इक्वल टू म्यू ई देखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, म्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी देखी, ग्राफ, ठीक है। और उसके बाद म्यू एंड बी डी एंड ई की डिपेंडेंसी देखी, यही तो आपने देखा। इसमें कंफ्यूज होने के 5 टॉपिक देखे, 5 टॉपिक को थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है ये। उसके बाद हमने क्या देखा था, मोबिलिटी देख ली, एनर्जी गैप देख ही लिया, बाकी जो बेसिक डेफिनेशन थी, करंट, टेम्परेचर और तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल दीज थिंग्स हैज बीन डिस्कस्ड। सो नाउ मोस्ट ऑफ द बेसिक पार्ट of the semiconductor theory has been covered. Now next topic will be mass action law. Okay, so यहाँ से आपको कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अगर थोड़ा बहुत आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ मास एक्शन लॉ कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे मास एक्शन लॉ। एक्चुअली वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से मास एक्शन लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम क्वेश्चन एक्चुअली हम इस वीडियो में नहीं बनाया करेंगे, क्वेश्चन हम बनाया करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे हर एक टॉपिक के बाद, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीडियो हमने देखे हैं यूट्यूब पे, बस थ्योरी पढ़ा दी, थ्योरी से कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना थ्योरी से, बस पढ़ के बैठ जाओगे, लगेगा अच्छा पढ़ा है सबने, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आने वाला। जब तक आप क्वेश्चंस पे हाउ टू अप्लाई दीज टॉपिक्स और दीज थ्योरी एट द क्वेश्चंस, दैट इज कैसे पता चलेगा आपको कि ये सब हो रहा है। तो इसके बाद हम जैसे टॉपिक कवर करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसके बाद हम 5 to 6 वीडियो एटलीस्ट कम से कम इतने डालेंगे, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन पर वीडियो में एलेबोरेट करके डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है तो टाइम लगता है बनाने में। बाकी एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको आगे कभी फ्यूचर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्ले करने लगेंगे आप इस सब्जेक्ट के साथ में। तो बस ये टॉपिक जो है वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो था। तो मैं संतोष कुमार, अगर आपका ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो रहे हैं तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अभी पता है अभी मैं सुबह से जगा हूं, सिर्फ एज इट इज मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी की हेल्प हो रही है मेरी वजह से तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी तक आई थिंक 244 हुए हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, इसको जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको पास पैसा नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते हैं। एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 5 से 6 हजार रुपए पे करना पड़ता है अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना है। अगर उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि अब आप समझदार हैं, नादान नहीं, ठीक है। थैंक यू।